السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب، یہ میلاد ہو رہا ہے میرے سسرال میں، اور ٹیبل گئی ہوئی ہے باہر سج کے پھولوں کے ساتھ لدی ہوئی صوفے کے آگے رکھی ہوئی ہے۔ تو ہم نے سوچا کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، گھر اپنا ہے تو چلیں جو مرضی ہے جیسے ہے۔ ویسے ہم تکلف کہیں بھی نہیں کرتے، گھر والوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے ریلیکس رہا کریں۔ ہاں سچ یاد آیا، آپ نے ٹائم چیک کر لیا، 3:30 سے 3:45 کے درمیان ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے۔ کوشش کیا کیجیے اس وقت آن لائن رہیے اور ویڈیو کو فوراً کھول لیجیے تاکہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس مبارک محفل کو دیکھ سکیں۔ یہ جناب جٹھانی ہے میری بڑی، جن کے ہاتھوں سے ہم گجرے اس وقت پہن رہے ہیں، اور سب سے مشکل بات جو ہوتی ہے نا، وہ دلوں کو، اپنے گھر والوں کے دل فتح کرنے ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، برکت درود پاک کی الحمدللہ بڑی محبتیں اللہ نے نصیب فرمائی، اور بڑا پیار اور بڑا خلوص اور صدقہ درود پاک کا الحمدللہ۔ یہ بہت ہی خوبصورت سی محفل جسے گھر والوں نے بہت مختصر سی جگہ میں بڑی محبت کے ساتھ سجایا ہے، پھول اور لائٹس اور روشنی اور جگ مگ۔ ابھی آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو سمجھ لگے گی کہ میلاد منانے کے لیے کیا بات ضروری ہوتی ہے۔ بس کی بات ہوتی تو یوں کبھی نہیں ہوتا، محل سونے رہتے ہیں، کٹیا جگمگاتی ہے۔ فصل گل کے موسم میں دل انہی کے کھلتے ہیں جن کو اس سمندر سے کوئی بوند آتی ہے۔ چلیے محفل دیکھیں۔ لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو، 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 منگتوں کی جھولی بھر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، منگتوں کی جھولی بھر دو، بھر دو، کاسا سب کا پنج تنی خیر سے میرے ویراں بھر دو، کاسا سب کا پنج تنی خیر سے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھی اور پھر اللہ نے بندے سے کہا دعا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعاؤں سے تقدیر تبدیل ہوتی ہے۔ اگر تبدیل نہ ہونی ہوتی تو اللہ نہ کہتا کہ مجھ سے دعا مانگو۔ اب دعاؤں سے تقدیر تبدیل کیسے ہوتی ہے؟ یہ جو بخار ہوتا ہے نا، ٹائیفائڈ بخار، اس کو باری کا بخار بھی کہتے ہیں، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، اور یہ ہڈیوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب تو ظاہر ڈائگنوز ہو گیا تو اس کا نام پڑ گیا، پہلے زمانے میں اس کا کوئی نام تو تھا نہیں، لیکن جب یہ ہوتا تھا تو ضروری جان لے کے جاتا تھا یا کوئی نقص چھوڑ جاتا تھا۔ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل چھوٹے سے بچے تھے، ان کو یہ بخار ہو گیا، والد فوت ہو گئے تھے، والدہ محنت مزدوری کرتی ہوں گی گھر میں بیٹھ کر کچھ کام کاج، اللہ کی نیک بندی تھی۔ بچے کا علاج جتنا ممکن تھا اتنا کرایا، بخار تو اتر گیا، لیکن وہ جاتے جاتے عبداللہ کی آنکھوں کی روشنی لے گیا اور وہ نابینا ہو گئے۔ والدہ بیوہ تھی، بچہ یتیم تھا، ایک ہی بیٹا تھا، ساری زندگی کی امیدوں کا آسرا۔ تو کوئی اس ماں کے تکلیف کا اندازہ کر سکتا ہے جس نے بیٹے کے لیے کیا خواب دیکھے ہوں گے، اور وہ خواب سارے ٹوٹ کے اس کی آنکھوں میں واپس چلے گئے۔ تو وہ کام بھی کرتی رہتی تھی اور روتی بھی رہتی تھی، رات کو تہجد میں اٹھتی اور مصلے پر بہت روتی اور اللہ سے بار بار دعا کرتی کہ اللہ تو قادر قدیر ہے، تجھے کچھ دشوار نہیں ہے، تیرے خزانے بھرے ہیں، تو کون کہے گا میرے بچے کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، یا اللہ مجھے عبداللہ کی آنکھیں واپس کر دے۔ دعا میں سب سے زیادہ سریع الاثر دعا ماں کی ہوتی ہے، کیونکہ جتنی ماں کی محبت سچی ہوتی ہے ایسے اتنی دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جب وہ رات کو تہجد میں دعا کرتی تھی اور روتی تھی تو ایک رات کو ان کو خواب آیا، اور خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ اے بی بی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے اور تیرے بیٹے کی بصارت کو بصیرت کے ساتھ واپس کر دیا ہے۔ بصارت اور چیز ہوتی ہے، بصیرت اور چیز ہوتی ہے۔ بصارت آپ کو سر والی آنکھیں یہ جو چہرے سے نظر آتی ہیں، یہ بس رنگ دیکھتی ہیں، روپ دیکھتی ہیں، اور بس شکلیں دیکھتی ہیں، انہیں اور کچھ نہیں دکھتا۔ بصیرت وہ دیکھتی ہے جو بصارت کو نظر نہیں آتا۔ تو وہ صبح اٹھی، خواب میں ظاہر اتنی بڑی بشارت ان کو ملی تھی، ان کی آنکھ کھل گئی ہوگی، انہوں نے یقیناً شکرانے کے نفل پڑے ہوں گے اور بڑی بےتابی سے انتظار کرنے لگی کہ عبداللہ کب اٹھتا ہے۔ اور صبح جب ننھے عبداللہ کی آنکھ کھلی تو اس کی چیخوں سے سارا گھر گونج رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا اماں مجھے سب نظر آ رہا ہے،
मैं सब देख सकता हूँ, मेरी आंखें रोशन हो गई हैं। सुभान अल्लाह। ये अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, इमाम बुखारी हैं, जिनसे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। हदीस की दुनिया के इमाम हैं और इनको जो ताज इमाम बुखारी को लगा है, इमाम बुखारी के सिवा एक आध ही बंदा होगा जिसको दुनिया में ये ताज लगाया गया होगा। आज तक भी जमीन पर कुरान के बाद अगर कोई मुस्तनद किताब है तो वो बुखारी शरीफ है। इमाम बुखारी को अल्लाह ने आंखें सिर्फ बसारत के साथ वापस नहीं की थी, बसीरत के साथ वापस फरमाई थी। और इमाम बुखारी ने फिर बुखारी शरीफ लिखी जो रहती दुनिया तक मुस्तनद हवाला है। अगर कोई आपको ये कह दे कि ये बुखारी शरीफ की हदीस है तो उसके बाद बहस की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो मकसद आपको बताने का ये था कि हालात कितने भी आपके बुरे क्यों ना हो, अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अंधे दिल और अंधी आंखें दोनों रोशन करने की शान रखने वाला है। उस पे छोड़ के चल निकलो तो खुद ही कांटे चुनता है, ना उम्मीद कभी ना होना, बेशक अल्लाह सुनता है। उस पे छोड़ के चल निकलो तो खुद ही कांटे चुनता है। उस पे छोड़ के चल निकलो तो खुद ही कांटे चुनता है। ना उम्मीद कभी ना होना, बेशक अल्लाह सुनता है। ना उम्मीद कभी ना होना, बेशक अल्लाह सुनता है। ना उम्मीद कभी ना होना, बेशक अल्लाह सुनता है। एक ही ताल पे सुर लगाओ, जैसे दुनिया धुनता है। देर सवेर में हिकमत है, पर देर सवेर में हिकमत है, पर बेशक अल्लाह सुनता है। ना उम्मीद कभी ना होना, बेशक अल्लाह सुनता है। दुआ की डोर में आंसू मोती बुन ले जितना बुनता है। दुआ की डोर में आंसू मोती बुन ले जितना बुनता है। ताना बाना जुड़ा रहे तो ताना बाना जुड़ा रहे तो बेशक अल्लाह सुनता है। ना उम्मीद कभी ना होना, बेशक अल्लाह सुनता है। बंदा तू बंदा मंदा है, पाप तो वो ही पुनता है। बंदा तो बंदा मंदा है,
सच्ची तौबा जो भी कर ले, सच्ची तौबा जो भी कर ले, बेशक अल्लाह सुनता है, ना उम्मीद कभी ना होना, बेशक अल्लाह सुनता है, उस पे छोड़ के चल निकलो तो खुद ही कांटे चुनता है, ना उम्मीद कभी ना होना, बेशक अल्लाह सुनता है। खिले हैं रुख पे गुलाब ताज़ा, लगाई जुल्फों में चाँद तेरे, खिले हैं रुख पे गुलाब ताज़ा, लगाई जुल्फों पे चाँद तेरे, चमकने वाली हर एक शय से ज़्यादा रोशन हुजूर मेरे, चमकने वाली हर एक शय से ज़्यादा रोशन हुजूर मेरे, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद मोहतरम थे उनका नाम आपको मालूम ही है कि अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला बड़े हसीन और जमील थे। आप एक मरतबा शाम के सफ़र पर थे तो एक काहिना ने आपको देखा। जैसे आज के ज़माने में ख़वातीन का मुअज़्ज़िज़ होना, अगर कोई डॉक्टर हो, कोई डायरेक्टर हो, कोई जज हो तो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है कि ये फ़लाँ ओहदे पर है। उस ज़माने में जब रसूलुल्लाह की पैदाइश मुबारक नहीं हुई थी, काहिना होना बहुत बड़ा डेजिग्नेशन होता था। यानी कोई आम औरत काहिना नहीं होती थी, बल्कि जो काहिना होती थी, काहिना उस औरत को बोलते थे जो सितारों की चाल का इल्म जिसके पास होता था और जिसको जो हिसाब जैसे करती थी, जायचे वगैरह बनाती थी, और ये बहुत बड़ा इल्म था। अगर कोई औरत ये इल्म हासिल कर लेती थी तो उस औरत को वो बड़ी मुअज़्ज़िज़ तस्वुर की जाती थी। तो एक काहिना थी, उसकी नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम पर पड़ गई। तो उसने पैगाम भेजा और काफिले में से हजरत अब्दुल्ला को बुलाया। हजरत अब्दुल्ला चले गए। काहिना के पास जाना कोई ऐसी बुरी बात नहीं समझी जाती थी, वो मुअज़्ज़िज़ औरतें होती थी। उनके पास गए तो उसने कहा कि ए अब्दुल्ला, मेरे साथ निकाह करोगे? हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैं अपने वालिद की इजाजत के बगैर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और मैं सफर में हूँ, इस इरादे से नहीं निकलाऊंगा। उसने कहा मैं तुम्हें 100 ऊँट देती हूँ, एक रात मेरे साथ गुजारो। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया मैं पाक शख्स हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में कभी ज़िना नहीं किया। और असल में उस जमाने में चूंकि इस्लाम तो उस वक्त तक आया ही नहीं था, हुजूर पैदा नहीं हुए थे,
तो उस जमाने में जिना को गुनाह नहीं समझा जाता था, और वो उसकी कीमत दे रही थी 100 ऊंट। उसने कहा मुझसे ले लो और मेरे साथ एक रात गुजारो। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, उसको इनकार करके चले गए। फिर हजरत अब्दुल्ला वापस गए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब आ चुका था कि मदीने जाना है, और वहाँ हजरत ज़ैनब जो थी कबीला, जिस कबीले से ताल्लुक रखती थी, पता चल चुका था कि वहाँ जाना है, वहाँ बेटे का निकाह करना है। हजरत अब्दुल्ला के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला की बारात लेके मदीने गए और हजरत आमना को दुल्हन बना के ले आए। हजरत आमना भी बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत थी। तो हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना ज़ाहिर है एक दूसरे से उनको बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार था। जब शादी को कुछ महीने गुजर गए तो वालिद मोहतरम ने कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, नबी पाक के दादा ने हजरत अब्दुल्ला से कहा कि आप घर वाले हो गए हो, कोई कामकाज करो, कोई काफिले पे निकलो, सफर पे जाओ, तिजारत करो। तो वो अपने वालिद के कहने पर फिर तिजारत के सफर पर निकले। तिजारत के सफर पर निकले तो फिर रास्ते जो एक जैसे होते थे, फिर उसी मुकाम पे पड़ाव किया, वहीं ठहरे। वही काहिना उसकी नजर फिर हजरत अब्दुल्ला पर पड़ी, लेकिन वो मुंह फेर कर अपने सौमे में वापस चली गई। तो अब हजरत अब्दुल्ला को बड़ी हंसी आई। आपने समझा शायद ये मुझसे नाराज है, फिर मैंने इसको मना किया था कि मैं निकाह नहीं करता, तो आप बगैर बुलाए उसके पास चले गए। और आपने उसको कहा कि जब मैं पिछली दफा यहाँ आया था तो तुम मेरे साथ निकाह करने के लिए मरती थी और मुझे 100 ऊँट देती थी कि मेरे साथ एक रात गुजारो, तो अभी मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। तो उसने ठंडी सांस भरी और उसने कहा, ए अब्दुल्ला, मैं बहुत मुअज़्ज़िज़ औरत हूँ, इस शहर के मर्द मेरे साथ निकाह करने के लिए मरते हैं, लेकिन मैंने जो नूर आपकी पेशानी में देखा था, मैं तो उस नूर की दीवानी थी और मैं चाहती ये थी कि वो नूर आपसे मुझे मुंतकिल हो जाए, लेकिन ये मेरा नसीब नहीं था। वो नूर तो आपसे आमना ले जा चुकी हैं। तो ये आपको बताना भी मकसूद था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जब जलवागर नहीं भी हुआ था, तब भी वो इतना हसीन था कि अगर कोई उसको पहचान लेता था तो उसके खानदान, नस्ल, नसब सब कुर्बान करने को तैयार हो जाता था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें मोहम्मद के साथ हजरत आमना की गोदी में तशरीफ लाए होंगे, तो न मालूम उन आंखों ने क्या देखा होगा जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोद में उठाया होगा। कभी अगर आप एक लम्हे को आंखें बंद करके तसव्वुर बनाएं, बच्चे वैसे ही खूबसूरत होते हैं क्योंकि वो मुनाफिक नहीं होते, उनके अंदर रिया नहीं होता, और वो जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वो कहते हैं, इसलिए वो खूबसूरत होते हैं। जब नबी करीम बच्चे होंगे तो आपके चेहरे की खूबसूरती का आलम क्या होगा, ये बात तसव्वुर भी नहीं की जा सकती कि चेहरा मुबारक कैसा होगा। और आप देखें, अब हमने किताबों में हुजूर का हुलिया इतना पढ़ा है कि हमें ये भी पता है कि नबी पाक की दाढ़ी के सिर्फ 17 बाल सफेद थे जब आपका विसाल हुआ है। हमें ये भी पता है कि नबी पाक की दोनों भवें आपस में जुड़ी हुई नहीं थी, दोनों भवों के दरमियान एक रग थी जो गुस्से में खड़ी हो जाया करती थी, फासला था भवों में। हमें ये भी पता है कि हमारे करीम आका की आंखें लंबाई के साथ मोटी थी, उनमें सुर्ख डोरे थे, पलकें इतनी घनी थी जैसे काजल लगा हुआ हो। नाक मुबारक पर इस जगह पर हमेशा एक नूर चमकता रहता था। ये गाल मुबारक जब मुस्कुराते थे तो सहाबा कहते थे हमें लगता है जैसे यहाँ रोशनी जिल्द के नीचे चलती है। और पेशानी के लिए हज़रत अबू हुरैरा ने अपने पोते को बताया कि मेरे बेटे, अगर तू रसूलुल्लाह को देखता तो तुझे ऐसा लगता जैसे सूरज हुजूर की पेशानी में चलता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लम्हाए मुबारक इतने खूबसूरत थे कि सहाबा कहते जब हुजूर बोलते थे तो हमें लगता था जैसे मुंह से फूल झड़ते। दंदान मुबारक में ये जो नीचे वाला दांत था, ऊपर वाले जो दांत थे सनाया जिनको बोलते हैं, इन दांतों के बीच में थोड़ा सा खला था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते थे तो उसमें से नूर झड़ता हुआ महसूस होता था। और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि नबी पाक की जुल्फों मुबारक में से अगर कान झलकते थे तो ऐसा लगता था जैसे चांदी के टुकड़े हैं। और गर्दन मुबारक तराशी में इंतहाई खूबसूरत थी। बाल मुबारक इंतहाई स्याह, जिसको आप जेट ब्लैक बोलते हो, इंतहाई स्याह थे। और अक्सर नबी पाक ने इतने रखे कानों तक, कभी कभी नीचे होते थे तो कंधों तक, और बहुत कम ऐसा हुआ कि कंधों से नीचे गए। तो बाल मुबारक नबी पाक कभी कभार तो कंघी फरमाते और कभी कभी एहतमाम नहीं करते थे, बाल मुबारक यूं छोड़ देते थे तो मांग दरमियान में से खुद ही निकल आया करती थी।
अब आप देखो दुनिया में कभी किसी शख्स ने आपको अपना भी चेहरा इतनी अच्छी तरह पता नहीं होगा जितनी अच्छी तरह हुजूर का चेहरा हम देखते हैं, यानी हम उसको पढ़ते हैं। फिर भी क्या आप आंखें बंद करो तो क्या आप हुजूर का चेहरा बना सकते हो? नहीं बनता। नहीं मेरा तखय्युल उनके कदमों की बुलंदी तक, जो उनको याद करती हूँ तो खुद को भूल जाती हूँ। यानी आप इतनी बातें आपको सुनकर अगर आप चाहो कि आप आंखें बंद करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे का तस्वुर बनाओ, कितनी चीजें ऐसी होती हैं जिनका हम तस्वुर बनाते हैं, बन भी जाती हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक की ऐसी शान है कि पलकों के बाल तक का हमें पता है कि वो कैसे थे। फिर भी अगर हम आंखें बंद करके सोचे तो हम हुजूर के चेहरे का तस्वुर नहीं कर सकते, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। कि मैं जब भी तस्वुर करती हूँ सरकार मेरे कैसे होंगे, कोई शय नहीं जचती आंखों में, ना चीज कोई भाए दिल को, जिस पे गुमा ये होता हो सरकार मेरे ऐसे होंगे। सदियों से हजारों लिखते हैं जो जैसा है वैसे दिखते हैं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु जब किसी को अपना जलवा अता फरमाते हैं ना तो हर किसी को हस्बे हाल देते हैं, जलवा जरूर अता फरमाते हैं, लेकिन जिस तरह आप मेरा चेहरा देख सकते हो या मैं आपका चेहरा देख सकती हूँ, जब हुजूर ख्वाब में आते हैं तो ऐसे हुजूर का चेहरा देख कोई नहीं सकता, बस पता होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह एक से ज्यादा मर्तबा ये सादत अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे नसीब है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने हुजूर की आंखें देखी या भवें देखी या होंठ देखे तो मैं नहीं कह सकती। हालांकि मुझे ये पता होता है कि इस वक्त हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, इस वक्त मैं मेरी नजरें नीची हो फिर भी मुझे पता है कि हुजूर इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं, हुजूर इस वक्त ये फरमा रहे हैं, लेकिन आंख उठा के वो है जो नूर चेहरे से फूटता वही पर्दा मेरी नजर का है, तो उठाए तू दिखाए तो मुझे राह मिले कि सफर नजर से नजर का है। जब हम सूरज नहीं देख सकते तो हम हुजूर का चेहरा कैसे देख सकते हैं? सूरज तो हुजूर के नालैन से झड़ा हुआ एक जर्रा है, अगर इसकी चमक की सहार हमारी आंखों को नहीं है तो चेहरा मुस्तफा की सहार कैसे हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को जुल्फ़े मुबारक का दीदार होता है, किसी को कंधों का हो जाता है, किसी को हाथ मुबारक का होता है, किसी को कदमैन शरीफैन का दीदार हो जाता है, किसी किसी को पूरा वजूद भी दिखता है, लेकिन उस पूरे वजूद का बस पता होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, आप ही हैं। और ये आप याद रखिएगा कि अगर कोई ख्वाब में हुजूर को देखे तो वल्लाह उसने हुजूर ही को देखा, क्योंकि ये हदीस है कि हुजूर ने फरमाया कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। तो अल्लाह करीम नसीब फरमाए कि सदियों से हजारों लिखते हैं जो जैसा है वैसे दिखते हैं, ये आलमा है और अक्स सभी, ये मरकज महवे रक्स सभी, सब इनसे ही हैं, फिर कैसे कहूँ सरकार मेरे ऐसे होंगे। भाई हम ये नहीं कह सकते कि हुजूर चांद जैसे हैं, चांद तो जाहिर है हुजूर के जूतों से झड़ा हुआ एक जर्रा है, चांद में दाग होते हैं, चांद घटता है, चांद बढ़ता है, चांद छुप जाता है, चेहरा मुस्तफा पे कोई दाग नहीं, वो छुप के भी रोशन रहता है। हम नहीं कह सकते कि हुजूर सूरज जैसे हैं, क्योंकि सूरज जलाता है, हुजूर जिलाते हैं, यानी चेहरे की ताबानी से जिंदा फरमाते हैं। हम नहीं कह सकते कि हुजूर के होंठ गुलाब जैसे हैं, क्योंकि गुलाब मुरझा जाता है, उन होठों की खुशबू कभी खत्म नहीं होती। लेकिन हमारी मजबूरी है, अगर हम हुजूर की जुल्फों को रात कहें तो इसलिए कि हमने रात से ज्यादा काली कोई शय देखी हुई नहीं है। अगर हम हुजूर के चेहरे को दिन कहें तो यूं है कि हमने दिन से ज्यादा रोशन कोई शय देखी हुई नहीं है। अगर हम हुजूर के होठों को गुलाब कहें तो ये इसलिए है कि हमने गुलाब से ज्यादा महकती हुई कोई चीज पाई नहीं है, वरना हकीकत ये है कि हर शय उनका सदका है, वो किसी चीज जैसे भी नहीं है। कैसे होंगे कोई शय नहीं जचती आँखों में, ना चीज कोई भाए दिल को, जिस पे घुमाए सरकार मेरे ऐसे होंगे। ये सारा आलम रंगों को, ये फूल सितारे और खुशबू शादाब चमन, ये
जब इनसे ही है फिर कैसे कहूँ सरकार मेरे ऐसे होंगे कोई शय नहीं जचती आँखों में ना चीज कोई भाए दिल को बाहर से जो अंदर को पलटे है रंग खुशबू की लपटे दिल नबी के प्यार का मंदिर है हर कतरा समंदर है सब इनसे ही है फिर कैसे कहूँ सरकार मेरे ऐसे होंगे सब इनसे ही है फिर कैसे कहूँ सरकार मेरे ऐसे होंगे मैं जब भी तसव्वुर करती हूँ सरकार मेरे कैसे होंगे कोई शय नहीं जचती आँखों में ना चीज कोई भाए दिल को कि जिस पिरोगे वो सरकार मेरे ऐसे होंगे कोई शय नहीं जचती आँखों में ना चीज कोई भाए दिल को। जज़ाकल्लाह। बाला बेका माले ही कशफा दूजा बे जमाले ही हसना जमीओ ख़िसाले ही सल्लू जिन वस्तु से अगर आप कभी अल्लाह के महबूब को अपने घर आने की दावत दें तो ऐसा होता है कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावत को कबूल फरमा दें। आपकी दावत में इतना इखलास होना चाहिए कि वहां तक आपकी अर्जी पहुंची भी और कबूल भी हो। तकरीबन 7 से 8 साल पीछे की बात है, हमारा ऐसे कहीं मिलाद हो रहा था, तो दौरान मिलाद ऐसे मुझे लगा जैसे मेरी आंखें बंद होती हैं और मैं कोशिश करती थी, जाहिर मैं मिलाद को लीड करती हूँ तो हम स्टेज पे कोई रिस्क नहीं ले सकते। हम कभी चाह भी रहे होते हैं कि हम आंखें बंद करके किसी चीज को महसूस करें, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता होता है कि हमने लोगों को साथ लेके चलना है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मेरी आंखें ना बंद हो, लेकिन मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। जब आंखें बंद होगी तो मैंने देखा कि कोई कमरा है और उसका दरवाजा एकदम खुला, जैसे हवा से दरवाजा जोर से खुलता है। फिर मैंने देखा कि उस कमरे में से 2 चादरें, सफेद चादरें, बिल्कुल सफेद, वो ऐसे उड़ती हुई बाहर आई जैसे हवा से कपड़ा उड़ता है, वो बिछ गई। फिर मैंने देखा कि उसी कमरे में से गुलाब की पत्तियां हवा के साथ निकली और वो उन चादरों पर बिछ गई। फिर मैंने देखा कि उस कमरे में से 2 साहिब बाहर आए। 2 साहिब थे और एक का लिबास बेहद उजला था और दूसरे जो साहिब थे उनका थोड़ा कम था, मतलब आंख को फर्क लगता था
کہ ایک کا بہت اجلا ہے، دوسرے کا بھی بہت اجلا تھا لیکن پہلے سائز سے تھوڑا کم تھا. وہ ان گلاب کی پتیوں کے اوپر سے گزرے اور وہ ان چادروں سے گزر کے چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد جب میرے حواس بحال ہوئے اور میری آنکھیں کھلی تو جیسے اب جو میرا حال تھا اس سے مجھے سمجھ آتا تھا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے. لیکن یہ کیا ہے اور دوسرے صاحب کون تھے اور میں نے کیوں دیکھا ہے؟ ہم تو ظاہر ہے الحمدللہ ہماری تو ڈیوٹی ہے، چاکری ہے، ہم تو 22-25 سال ہو گئے الحمدللہ کہ ہم اس چاکری میں ہیں. تو یہ اسپیشلٹی کیوں ہے؟ وہ میلاد ختم ہوتے ہوتے تک ظاہر ہارٹ بیٹ میری کافی تیز تھی، مشکل سے ہم نے اس کو اینڈ لگایا میلاد کو. اٹھ کے ہم اندر گئے، تھوڑی دیر میں لیٹی، ان سے میں نے گھر والوں سے تھوڑا شہد دیں کہ طبیعت نہیں سنبھل گئی. وہ شہد دن میرے پاس بیٹھ گئی، انہوں نے کہا باجی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے ان سے کہا پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سارا سال کیا کرتی رہی؟ وہ کہنے لگی کیوں؟ میں نے کہا مجھے بتائیں کیا کرتی رہی؟ انہوں نے کہا میں باجی سارا سال رات کو 2 نفل پڑھتی تھی اور میں نفل پڑھ کے ہدیہ کرتی تھی حضور کو اور میں دعا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ میری محفل میں آئیے گا اور ساتھ حضور غوث اعظم کو بھی لے کے آئیے گا. آپ دیکھیں کہ پورا سال وہ کہتی ہے میں نے ایسے کیا. تو اب اگر کوئی پورا سال کسی کو بلائے تو وہ کیوں نہ آئے؟ ایسا ہوتا رہتا. حضور سے ہمارا رشتہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کسی گناہ پہ، کسی غلطی پہ، کسی کوتاہی پہ، کسی ایپ پہ وہ ٹوٹ جائے گا. ٹوٹتا نہیں ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اور جب آپ رینیو کرنا چاہتے ہیں، جب آپ اس کو معذرت کرنا چاہتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں، آپ ادا کرتے ہیں کہ آپ نہیں کریں گے، یا رسول اللہ نبھائیں چلائیں، اور آپ دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا چاہیں گے، ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے، ان کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے. جو بلانا چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر تشریف لاتے ہیں. ستارے میرے گھر کو جگمگائیں، کبھی سرکار جو تشریف لائیں. میں دستک سن کے پوچھوں کون باہر، محمد نام وہ اپنا بتائیں. ہزاروں سال اس لمحے میں بیتے، مبارک پاؤں وہ اندر بڑھائیں. میرے گھر میں نہیں کچھ شان لائے، پریشان ہوں کیا رستے میں بچھائیں. کھلا ہے حال جن پہ سب کے دل کا، وہ میرا حال دیکھیں مسکرائیں. کوئی زحمت نہ کرنا میری بیٹی، بڑی شفقت سے وہ مجھ کو بتائیں. تمہاری عرضیاں پہنچی تو سوچا چلو پھر آج تم سے مل کے جائیں. جن رستوں سے چل کر میرے آقا مجھ تک آئیں گے، پھول ستارے کلیاں نہیں یہ آنکھیں راہ میں پائیں گے. جن رستوں سے چل کر میرے آقا مجھ تک آئیں گے، پھول ستارے کلیاں نہیں یہ آنکھیں راہ میں پائیں گے. رات میں ہوگا یا دن میں وہ لمحہ کب تک آئے گا. رات میں ہوگا یا دن میں وہ لمحہ کب تک آئے گا. جب دید کی پیاسی آنکھوں کو، دید کی پیاسی آنکھوں کو دیدار عطا فرمائیں گے. دید کی پیاسی آنکھوں کو دیدار عطا فرمائیں گے. جن رستوں سے چل کر میرے آقا مجھ تک آئیں گے، پھول ستارے کلیاں نہیں یہ آنکھیں راہ میں پائیں گے. اب عمر کی آخری گھڑیاں ہیں، ایک ہجتی ہے اور خون ختم. اب عمر کی آخری گھڑیاں ہیں، ایک ہجتی ہے اور خون
तुमने ना संभाला तो हम दोनों जहां से जाएंगे, तुमने ना संभाला तो हम दोनों जहां से जाएंगे। जिन रस्तों से चल कर मेरे आका मुझ तक आएंगे, फूल सितारे कलियां नहीं ये आंखें राह में पाएंगे। सब खामियां ऐब तो मुझ में है, सुल्तान मेरे उजले सुथरे। सब खामियां ऐब तो मुझ में है, सुल्तान मेरे उजले सुथरे। जब दर्द सिवा होगा हद से, दर्द सिवा होगा हद से, वो तब ही दवा को आएंगे। दीद की प्यासी आंखों को दीदार अता फरमाएंगे, दीद की प्यासी आंखों को दीदार अता फरमाएंगे। दीद की प्यासी आंखों को दीदार अता फरमाएंगे। हर रात की सुबह होती है कुदरत का कानून बदल। हर रात की सुबह होती है कुदरत का कानून बदल। कब मेरे मुक़द्दर की रातें, मेरे मुक़द्दर की रातें सरकार मेरे चमकाएंगे, मेरे मुक़द्दर की रातें सरकार मेरे चमकाएंगे। जिन रस्तों से चल कर मेरे आका मुझ तक आएंगे, फूल सितारे कलियां नहीं ये आंखें राह में पाएंगे। जिन रस्तों से चल कर मेरे आका मुझ तक आएंगे, फूल सितारे कलियां नहीं ये आंखें राह में पाएंगे। मैं करवा लेती हूँ उसको। उठाओ दूध उठाओ। अंधेरों में दिया बन के मुसलसल दिल में जलता है, अंधेरों में दिया बन के मुसलसल दिल में जलता है। मसाहिब कितने हो मुश्किल नबी का नाम चलना है, मसाहिब कितने मुश्किल नबी का नाम चलना है, नबी का नाम चलना है, नबी का नाम चलना है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन। लीजिएगा कि काम जिसका भी बनेगा हुजूर की नजर में आने के बाद ही बनेगा। अगर कोई ये समझता है कि वो बहुत पढ़ लिख जाएगा, उसके पास बड़ी डिग्री होगी, फिर वो बहुत अच्छी नौकरी करेगा या करेगी, फिर वो बड़ी शानदार घर में रहेगी, फिर वो गाड़ियां खरीदेगी, वो बिजनेस सेटल करेगी, वो ये सब कुछ कर लेगी, फिर क्या होगा? जब मरेगी तो सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाभ चलेगा बंजारा,
साथ तो कोई कुछ नहीं ना लेके जाता। मियां मंशा भी जब मरेगा, आधा पाकिस्तान उसने खरीदा हुआ है, लेकिन मरेगा तो क्या कब्र में साथ लेके जाएगा। ये मलक रियाज जो बहरिया टाउन वाला है, कभी आप बहरिया टाउन अगर गए हो तो बहरिया टाउन पूरा एक शहर है। अगर आप एक तरफ से घुसे तो दूसरी तरफ निकलने में घंटा लगता है, और रास्ता भूल जाए तो 2.5 घंटे आप किसी के घर नहीं पहुंच सकते। सिर्फ पिंडी का बहरिया टाउन इतना बड़ा है। बहरिया टाउन लाहौर में है, बहरिया टाउन कराची में है, मुल्क के हर बड़े शहर में बहरिया टाउन में मलक रियाज की मिल्कियत है। वो गाड़ी पे सफर नहीं करता, वो हेलीकॉप्टर पे सफर करता है। जब मरेगा तो क्या करेगा? वही 2 गज जमीन होगी जो सबको मिलती है, वो भी उससे भी। ये जो इंडिया का अमिताभ बच्चन है, इसका जो गोल्ड हीरो का जो इसका बिजनेस है डमास के नाम से, इसका पूरी दुनिया में आपको डमास मिलेगा, पूरी दुनिया में इसका इतना बड़ा बिजनेस है। तो क्या ये हीरे कब्र में साथ लेके जाएगा? नहीं। वो जो आखिरी वाली कामयाबी है ना, वो उसको मिलेगी जो हुजूर की निगाह में आया होगा। क्योंकि ये दुनिया जैसे माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है ना, वो वहां खाता पीता है, सोता है, जागता है, खेलता है, लेकिन उसके लिए वो कोठरी ही दुनिया होती है। फिर जब वो पैदा होता है, जमीन पे आता है, तो वो क्यों रोता है? क्योंकि वो समझ रहा होता है कि सारी दुनिया बस वो कोठरी है, लेकिन बाहर आता है तो दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो वो परेशान हो जाता है। फिर वो रोता चीखता चिल्लाता है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसको समझ आती है कि दुनिया तो बड़ी काम की जगह है। जिस तरह ये माँ का पेट है और ये दुनिया बड़ी है, उसी तरह कब्र का पेट है और उससे अगली दुनिया इस दुनिया से बहुत बड़ी।